Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago. And so we've now known each other for a while. So how do you see Prime Minister Modi's leadership role as far as making technology inclusive so that digital infrastructure can be created? I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so so I have to say that. What are your future plans personally? What do you look at as far as investment in India is concerned? Yeah, well, I think there's a tremendous amount of potential for all three pillars of the sustainable energy future. The three pillars being sustainable energy generation through solar and wind primarily, and obviously India is great for solar, and the amount of land area you actually need to generate enough electricity to power India is very small. I believe it'd be probably 1 or 2% of the land area of India. So it's very doable. And then you need to pair that with stationary battery packs because the sun doesn't shine at night. And then you need electric vehicles, and then you have a sustainable energy future. And I think it will. The interesting thing people will find is that this is a lower cost way to go as well. That may surprise people. And we're also hopefully looking forward to bringing Starlink to India as well. So, the Starlink internet, which I think can be incredibly helpful for sort of remote or rural villages where they perhaps may have no access to internet, or the internet is very expensive and slow. Do you plan to visit India anytime soon? But did Prime Minister extend an invitation to you? He did, and yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. I'm looking forward to it. प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं वहां पर अपने होटल में न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त अपने होटल में वहाँ पर न्यूयॉर्क में पहुँच चुके हैं और लोगों का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। भारत और अमेरिका के झंडे लिए हुए लोग वहाँ पर लगातार हम ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री काफ़ी नज़दीक जाकर लोगों का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। और ये सिर्फ बाहर के दृश्य हैं। अभी अंदर होटल की लॉबी में भी काफ़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता भी वहाँ पर मौजूद हैं, हमारी कैमरा टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं और हम लगातार वहाँ के दृश्य भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये होटल के बाहर के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं और लोगों का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस बार की यात्रा है प्रधानमंत्री की अमेरिका की और ऐतिहासिक यात्रा इसको कहा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने वाले हैं। ऐसा करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और साथ ही साथ योग की दृष्टि से भी इसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि योग जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया है। 21 जून यानी कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। ये प्रधानमंत्री इस वक्त अंदर पहुंच चुके हैं होटल में। वहां के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार कई सारे हमारी टीम्स वहां पर मौजूद हैं। वो जिस तरह से वो अपने दृश्य वहां से भेज रहे हैं हम सीधे दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अभी प्रधानमंत्री होटल के अंदर वहां पर पहुंच गए हैं।
तो बिल्कुल हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, जिस तरह का उत्साह वहाँ पर लोगों में देखा जा रहा है, हम देखते हैं कि लगातार जब भी प्रधानमंत्री बाहरी देशों में यात्रा के लिए जाते हैं, वहाँ जो भारतीय समुदाय है पिछले कुछ सालों में, और जैसा कि पहले आप ये बता भी रहे थे कि पहले जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री का विदेश दौरा होता था तो केवल कुछ लोगों को बुलाकर उनसे एम्बेसी में मुलाकात करने तक ही वो सीमित होता था। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पूरी जो ये परंपरा है इसको तोड़ा है। प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हजारों की संख्या में वो जो भारतीय समुदाय के लोग होते हैं उनको काफ़ी उनके अंदर उत्कंठा होती है अपने नेता से मिलने की, वो आते भी हैं मिलने को। तो प्रधानमंत्री ने इस परंपरा को तोड़ा है और प्रधानमंत्री सबसे जाकर मिलते हैं, और जहाँ पर वो सबसे ना भी मिल सकें तो वहाँ पर सबको संबोधित करते हैं। बिल्कुल, ये जैसा मैंने कहा कि ये डायस्पोरा डिप्लोमेसी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डायस्पोरा डिप्लोमेसी को भारत की विदेश नीति से के एक नए आयाम के तौर पे जोड़ा। अब आप देखिए होटल के अभी आपने एयरपोर्ट पे देखा, उसके बाद आप होटल्स में देखिए कि होटल में, और एक बात और नोट कीजिए, आप देख रहे हैं वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है कुछ वहां पे कुछ वृद्ध लोग हैं, या इसमें आपको ऐसे यंगस्टर भी दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर, जो दरअसल अमेरिका में ही पैदा हुए होंगे। उनकी एक या दो पीढ़ियां जो हैं वो वहां पर जो है दरअसल एक या दो पीढ़ी वहां पर बसी होगी, और उनका जन्म वहां हुआ, भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में जन्म हुआ। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका में जन्म हुआ, लेकिन ये पीढ़ी जो है भारत के साथ जो कनेक्शन है, नरेंद्र मोदी ने इस पीढ़ी को भारत के साथ जोड़ा। देखिए आप भीड़ देखिए वहां होटल के अंदर, तो मैंने कहा ना, आप देखिए वहां पर भीड़ देखिए, लोगों के चेहरों पर जो है उत्साह देखिए, लोगों के चेहरों पर खुशी देखिए, लोगों के चेहरों पर उत्साह जो है वो और विभिन्न धर्मों के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। जी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है ना इंडिया के साथ भारत के अंदर जो है लोगों की, ये और ये सिलसिला अभी आप देखिएगा अगले 3-4 दिन तक जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे वहां आपको दिखाई देगा। महत्वपूर्ण बात क्या है कि चंद्रशेखर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस के अंदर जो बाइडेन के साथ मुलाकात करेंगे तो अशोक एक मिनट देखना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ऑटोग्राफ भी वहां पर दे रहे हैं लोगों को। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस वक्त होटल की लॉबी के अंदर पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं जो भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। विभिन्न संप्रदायों के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, और जो कोई भी प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ भी वहां पर मांग रहा है, प्रधानमंत्री उसको अपना ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं